Assalamu alaikum everyone. This is your host Rida Imran. Today I welcome you all with another episode of Give It a Thought. According to a survey, mental health disorders emerged during adolescence. Mental health issues affecting teenagers and it has become a norm in our society. A research revealed that 1 out of 5 young people suffer from mental health disorders. In today's show, we will be talking about this crucial topic that is mental health disorders. For this discussion today, I have invited two guests. Hafsa Tahir, she's a prominent public speaker based in Karachi. She's a budding psychologist and pursuing her degree in Karachi University, and she's an active mental health advocate. My another guest is Soha Tariq. She is an experienced clinical psychologist and she has done her MS from Institute of Professional Psychology. She has dealt with various cases of mental health issues at various renowned clinic centers and hospitals. Currently, she is working at Taj Consultants Clinic and also conducting online counseling sessions. Welcome to my show, both of you. Thank you so much. Thank you, Niz. Thank you. Thank you for inviting me. Hafsa, let's start the program with you. Hafsa, what does mental health really mean to you? Mental health to me is to be in your optimal mental space where you have peace, okay, where Okay, you are in a state of mind where you are not deviating from the norms of the society, okay, and you're able to complete all your routine daily tasks without any excess or disturbing, dysfunctioning, or distressing wala stress. That's mental health to me. okay, okay. So, what are the causes? What are the reasons of these mental health issues? There are various actually reasons for. There's no one exact cause. There could be genetics plays an important role, especially from the maternal side. And then there are biological factors. मतलब हमारी जो brain chemistry होती है, the various hormones we have and the chemicals we have in our brain. Like for example, डिप्रेशन का एक रीज़न कहते हैं कि एक ब्रेन के हमारे केमिकल होता है ब्रेन में सेरोटोनिन के नाम से, सेरोटोनिन Okay, के नाम से। अगर वो कम हो जाए तो हो सकता है। एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो हो गए, देन वी हैव दीज सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्चुअली, like maybe a death of a loved one, a loss of a relationship, trauma, abuse, etc., etc. So okay, these are just some of the factors that can, cause a person to be mentally ill. okay. Hafsa, moving back to you. Hafsa, how can we help fight? कि मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो इट्स अ स्टिग्मा स्टिल इन द सोसाइटी. लोग घबराते हैं, कतराते हैं इसके ऊपर बात करने को. अगर किसी को होता भी है कोई कॉज या कोई साइन या सिम्टम्स तो वो उसको हाइड करता है और उस हाइड करने के सिलसिले में वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाती हैं उसके कॉजेज जो है या साइंस या सिम्टम्स जो हैं. तो इस स्टिग्मा से कैसे फाइट किया जाए और क्या किस तरह इस स्टिग्मा को अपनी सोसाइटी से रिमूव कर सकते हैं हम? देख, किसी भी मसले के लिए ना हमें सबसे पहले तो 1800 और 18th सेंचुरी से ना बाहर आना पड़ेगा. जब हम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं, हमें सबसे पहले हिस्ट्री बताई जाती है जिसमें बताया जाता है कि पहले जब कोई मेंटल डिसऑर्डर्स होते थे, किसी को इस तरह का कोई मसला होता था, हेलुसिनेशन होती थी, व्हाटसोएवर जो भी होता था, तो उनके ब्रेन में होल्स दिख कर देते थे और उनको पागल, मतलब एक्सट्रीम पागल समझा जाता था और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था. अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी आर स्टिल इन दैट टाइम, ठीक है, हम हम्म. वहाँ से बाहर ही नहीं आए. तो इसीलिए हम्म. वो जो स्टिग्मा है वो बेसिकली चला आ रहा है बहुत टाइम से, हमारी कल्चर का पार्ट बन गया है कि अगर किसी को कोई भी इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो मतलब कि वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वाला पागल हो चुका है, ठीक है, और वो हम्म. साइकोटिक हो चुका है. हमें सबसे पहले एजुकेशन की ज़रूरत है. अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन होगी एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, एंड उसमें भी साइकोसिस होना भी इज नॉट अ बैड थिंग. Just like you have other parts of your body, you have your brain. When you start considering your brain an organ like all the other organs of your body, or like all the other systems of your body, ऑटोमेटिकली आपका स्टिग्मा जो है वो कम होगा. जब आप एजुकेट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे. मसलन कि जब हम 9th ग्रेड में ही सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जब हम वो पढ़ते हैं
हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आई थिंक 9th की बायोलॉजी की बुक में है, तो उधर ही बता दिया गया है WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई दी ऑप्टिमल, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट दी ऑप्टिमल मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, तो हम वो मेंटल राइट। खा जाते हैं, ठीक है। सो द मोर यू हाँ। एजुकेट पीपल, the more you help in decreasing the stigma. So, being in clinical psychologist, what is the most common thing you hear from people living with mental health condition? The most common thing, actually there are a lot most significant जो मुझे feel होता है कि they feel that no one understands them, especially their loved ones, meaning their family members, the parents, etc. So, like Hafsa said, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो stigma है, it persists in almost every, बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में ingrained हो गया है ये। Hmm. भी एक और चीज़ मैं mention करूँगी, there is a huge generational gap between our generation and the parents, जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि mental illness is also like physical illness, and Hmm. that it's, और इसको और डिमीन नहीं किया जाता। ऐसे अक्सर ये जुमले बहुत सुनने को मिलते हैं कि जो अटेंशन सीकिंग है, ये तो कुछ भी नहीं है, बस सो जाओ, नमाज पढ़ लो, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, एंड ये नहीं। तो इसको बिल्कुल लाइटली लिया जा रहा है, बीमारी के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। और ये चीज़ बहुत मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। अक्सर क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि वी फील दैट नो वन अंडरस्टैंड्स अस, हमारी प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। हफ्सा, बीइंग अ टीनेजर, आप क्या समझती हैं कि आजकल की जो टीनेजर्स हैं उनको क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज उनके सामने क्या आ रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स वो ज्यादा फेस कर रहे हैं, कौन से सिम्टम्स उनको ज्यादा फील हो रहे हैं? अच्छा, वैसे आई एम नॉट अ टीनेजर एनी मोर, ओके। रिसेंटली केम आउट ऑफ इट, बट वही है कि सिंस इट्स प्रीटी रिसेंट, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, एंड आई हैव सम स्टूडेंट्स दैट आर टीनेजर्स एंड माय सिबलिंग्स। तो आई थिंक वही जो सुहा ने मेंशन किया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज दैट जनरेशनल गैप, कि ओके। हमारे जो मसले हैं ना, हमारे जो मसाइल हैं, वो इंटायरली डिफरेंट हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है, सब कुछ इतना फास्ट हो गया है कि हमारे मसले बहुत डिफरेंट है। तो ठीक है, मान लिया आपके ज़माने में नहीं होता होगा या वट एवर, लेकिन हमारे वही मसले को, टीनेजर्स के इश्यूज को, एक तो नंबर 1 एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, और नंबर 2 इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगेन इलिटरेसी है, कि हर एज में साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। क्या एक 8 साल के बच्चे को बुखार नहीं होता? क्या एक 8 साल के बच्चे को कैंसर नहीं होता? होता है। सिमिलरली एक 8 साल के बच्चे को, टीनेज तो फिर बड़ी एज होती है, छोटे बच्चों को भी एज यंग एज 5 to 6 years ओल्ड को डिप्रेशन हो सकता है। सो आई थिंक ये यही अवेयरनेस की ही इशू है जो कि टीनेजर्स फेस कर रहे हैं। प्लस टीनेजर्स जो है, दे हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, दे आर गोइंग थ्रू very tough changes in their life जो कि visible नहीं होते, and parents fail to understand that. ओके। तो सोहा, व्हाट डू यू थिंक कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पेशेंट्स को, या थेरेपीज की तरफ जाना चाहिए, मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? एक्चुअली निदा द थिंग इज, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है, मीनिंग इसको फार्माकोथेरेपी, मतलब अगर इफ नीडेड तो मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं थ्रू अ साइकाइट्रिस्ट, एंड साइकोथेरेपी भी होती है, साथ साथ चलता है। अगर सिम्टम्स इतने सीवियर हैं या कि मेडिकेशंस की ज़रूरत है, तो हम लोग ज़रूर उनको रेफर करते हैं टू अ साइकाइट्रिस्ट। और इसके साथ साथ साइकोथेरेपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट, जैसे कहते हैं, इंटीग्रल रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। इसका देखिए, मेडिकेशंस जो होती हैं वो सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करती हैं, जो असल में जो इशू होता है ना उसको रिजॉल्व करना, वो साइकोथेरेपी के थ्रू होता है। यू मे गोल्स विद योर थेरेपिस्ट, वी वर्क टुगेदर, वी वर्क ऑन दोज गोल्स टुगेदर, बाउंड्री सेटिंग होती है, कैथारसिस होता है, कोपिंग स्किल्स सीखते हैं हम लोग, हाउ टू मैनेज आवर इरेशनल थॉट्स, और इमोशंस को रेगुलेट करना सीखते हैं हम लोग। एंड इस तरह मैं बोलती हूँ ट्रीटमेंट होता है, लाइक इफ यू आर तो सफरिंग। अब अगर हम किसी पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड है, या वो मतलब सफर कर रहा है कोई कंडीशन को, और हम उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, तो लोग तो कहते हैं कि तुमने तो उसको पागल करार दे दिया, और साइकोलॉजिस्ट किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये तो बिल्कुल बच्चा या बच्ची वट एवर द पर्सन इज, ये तो इसका मतलब बिल्कुल पागल हो गया है, तो दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग हिम और हर टू अ साइकोलॉजिस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लोगों का। तो प्लीज थोड़ा सा बताइए, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ पागल को ही ट्रीट कर रहे होते हैं, या एक वो अच्छे भला इंसान जिसके साथ थोड़ा सा इशू है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, कोई ट्रॉमा है जिससे वो गुजर रहा है, उसके लिए भी वो काउंसलिंग सेशंस रखते हैं? आई थिंक पहली बात तो हमें ये पागल वर्ड जरा हमें डिक्शनरी से निकालना होगा, और इस बारे में सोचना ये हमारी सोसाइटी का फॉल्ट है कि क्यों हम लोग एक शख्स को पागल कह रहे हैं। क्या फर्ज हम्म। करें अगर शख्स जिसके साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप में रह चुका है, जिसके साथ कोई फर्ज करे बहुत ट्रोमेटिक इवेंट हो चुका है, क्या उसके साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? क्या हम हम्म। सब सुपर ह्यूमन है? क्या हम्म। हम उसे पागल कहेंगे? सोल्जर्स होते हैं जो वॉर से आते हैं, वो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, क्या हम उन्हें पागल कहेंगे? Why do we use that word? ये हमारी सोसाइटी का फॉल्ट है, एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज एवरी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू वी हैव टू इरेज दिस काइंड ऑफ स्टिग्मा, जैसे आप कर रही हैं। ये वी ऑल नीड टू डू आवर पार्ट। और एक चीज़ है, हम्म। मैं एक पॉजिटिव चीज़ मैं ज़रूर नोट कर रही हूँ कि अब विद द राइज इन सोशल मीडिया और अब लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है, हम्म। so this can also help. But and हम्म। coming back to your question, we need to address this fault in our society कि हम क्यों कह रहे हैं। हमें इस वर्ड को निकालना होगा अपनी डिक्शनरी से। एंड बी हफ्सा। एंड ये बोलूँगी कि यस। वी नीड टू प्रैक्टिस एम्पैथी। ओके। राइट, सो ट्रू। समझना, हाँ। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग वी लैक इन आवर सोसाइटी, आई फील। हाँ। और हफ्सा, मूविंग बैक टू यू, हफ्सा, क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे अगर तो ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इंक्रीज हो रहा है हमारी सोसाइटी में, जनरेशन गैप की वजह से, या अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, या लोग इलिटरेसी है, एजुकेट नहीं है, लोग अवेयर नहीं है इस प्रॉब्लम से, तो क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे? Society पे जो impact है, I think if you look around yourself, it's pretty clear. We are a handicapped generation, ठीक है? We see, हम जब भी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में सेल्फ हेल्प बुक्स का जो बिजनेस है, सेल्फ हेल्प itself, वो काफी बढ़ गया है। Why is it that? क्योंकि we're desperate, we want to know what to do, but we don't know how to do it. हम काफी ज्यादा हम्म। हैंडीकैप्ड हैं। आपको हम्म। इन सेल्फ हेल्प बुक्स के थ्रू आपको ये पता चलता है कि यार माइंडसेट इज एवरीथिंग, ठीक है? हम्म। और जो माइंडसेट होता है इंसान का, जिस तरह से मेंटल आउटलुक होता है, वेदर आई एम अ पेसिमिस्ट और आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, थिंग्स लाइक दैट, द वे वेदर आई एक्सटर्नलाइज थिंग्स और आई इंटरनलाइज देम, एटसेट्रा, इन सब चीज़ों से हमारी लाइफ का फ्यूचर बन रहा होता है, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, क्या डिसीजंस लेती हूँ। अब आपका दिमाग ही सही नहीं, दिमाग सही से मतलब आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं है आपका। आप मतलब मैं इस वक्त अपनी पढ़ाई करने की बजाय, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय अपने डिप्रेशन से फाइट कर रही हूँ, अपनी एंजाइटी से फाइट। मेरी सारी एनर्जी मेरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फाइट करने में लग रही है, ना कि किसी और प्रोडक्टिव बेहतर काम जो मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती थी। सो बेसिकली मेंटल हेल्थ को अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे, तो आप जो है अपना, आप जो आप कहते हैं यंगस्टर्स आर दी एसेट ऑफ अ नेशन, तो आपने एसेट को बर्बाद कर रहे हैं बेसिकली। Right, so true. Soha, what do you suggest? What are the solutions? किस तरफ जाना चाहिए? क्या solutions हैं? अगर किसी को mental health disorder, mental health issues, mental health problems हैं, तो उनको क्या solutions हम provide कर रहे हैं आज इस platform से? आई थिंक सबसे पहले तो मैं सबको अर्ज करूँगी कि वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ पे बट वेरियस डिसऑर्डर्स। हमें देखना होगा हम्म। कि नॉट जस्ट एजुकेट आवरसेल्फ, हमें ये भी पढ़ना होगा कि एक डिसऑर्डर है वो किस तरह मैनिफेस्ट करता है हर शख्स में। हम्म। हर ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स पे डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है एक जैसे हो सब में। हर शख्स का डिफरेंट एक रिएक्शन होता है। हम किस तरह उस शख्स की मदद कर सकते हैं, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले। हम सब साइकोलॉजिस्ट तक महदूद नहीं है ये। हम्म। इफ़ यू हैव अ फ्रेंड अब जो आपको लगता है सफ़र कर रहा है, तो आप पढ़ें कि व्हाट कैन आई डू टू हेल्प हिम और हर। मैं डिसऑर्डर के बारे में पढ़ूँ कि किस तरह सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। मैं व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई बी देयर फॉर हिम, और क्या करूँ मैं आगे। फिर हमें ऐसे अर्ज करें कि प्लीज़ सीक आउट अ थेरेपिस्ट, और उसकी उसको स्टिग्मा फाइट करने में हेल्प करें, उसकी कोपिंग में थोड़ी हेल्प करें हम लोग। वी लाइक आई सेड वी ऑल हैव अ पार्ट टू प्ले। और समथिंग आई Can you फॉरगेटिंग। can you can you name the disorders के वो क्या names हैं, क्या terms हैं, जो वो disorders आते हैं mental health के, वो कौन से disorders हैं?
बहुत there's a whole list. हमारे देखिए हम साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट फॉलो करते हैं एक मैनुअल द डायग्नोस्टिक द DSM-5 जो विच हैज अ कंप्लीट सेट ऑफ डिसऑर्डर्स जो लिस्ट की हुई है अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन है तो बहुत है फ्रॉम डिप्रेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स टू एंजाइटी टू ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टू स्लीप वेक डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया हेलुसिनेशन बहुत है सो व्हाट वी Okay. कैन डू हमें लगता है कि एक शख्स हम लोग वी है देखिए हमारे पास गूगल है हमारे पास वेरियस वी हैव नॉलेज एट आवर फिंगर टिप्स तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प पढ़ सकते हैं इसके बारे में एंड यू नो ट्राई टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं अब तक टू नो स्प्रेड दिस to spread more information about mental health Right. like Hafsa, share what? everything Okay. anything. Hafsa, what message do you want to give to the public, to the people, through this platform of Give It a Thought regarding the mental health issues? I think there's something that I've been wanting to say for a long time, and I think this is the right time and place. Start discovering yourself, right? So yes, there's as Suha said, that's very important. The thing about empathy, कि यार अगर आपके अंदर empathy होगी ना, तो you can stand in someone else, फिर आप समझ सकते हो. But apart from that, I really want people to start exploring their own selves because in the end, you have you. Okay, in the end, you have you and you will have no one else. Since जब आप कोई आपकी सोसाइटी में जब कोई स्टिग्मा वाली चीजें होती हैं कोई स्टेरियोटाइप चीजें होती हैं and you go through them, even the people closest to you, your romantic partners, your best friends, your parents, they may not support you, right? But you should be educated enough, right? You should be educated enough and you should have enough knowledge कि यार आप अपने लिए कुछ कर सको. So psycho education एक चीज होती है, एक चीज के नाम है. For me, it has been very helpful. Read as much as you can. Follow psychologists and psychiatrists on Instagram or whatever. Follow good YouTube channels and conduct different personality tests. Online जाओ वहाँ पर different disorders के tests होते हैं. I'm not saying they're valid and reliable, but just to know more about yourself. Just keep in check मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ stand कर रहा हूँ, मेरी क्या weakness है, मेरी क्या strength है, और मैं अब अपनी weakness पे किस तरह work कर सकता हूँ. ठीक है, so I think that's that. Thank you. Yes, Soha, any message you want to give to the people from this platform? I just want to say कि if you are someone who's suffering from mental any symptoms और आपका अगर आपको लगता है तो I want you to know that you're not alone. It may feel like a very helpless, very hopeless situation. You may feel alone, but I promise you are not alone. There are many others who are suffering like this, and it always helps to reach out to someone. There's always hope. There are many psychologists जो reasonable charges होते हैं जिनके affordable charges होते हैं. Online भी आजकल sessions हो रहे हैं. Do take. I hope you get the strength, to take that step. There's a light at the end of the tunnel, and और ये चीज़ें मैं भी बोल सकती हूँ कि anyone who's going through therapy is the hardest work you'll ever do in your life. To discover yourself, to heal. It's the most. So we are all survivors in a way. हम लोग अपनी life को optimize कर रहे हैं, and that's all for now. Thank you so very much, Soha. Thank you so very much, Hafsa. I hope कि आज लोग इस platform Thank के you for through inviting Thank us. you for inviting me. I would really like to appreciate the show, Give It a Thought, and your efforts for mental Thank health you so itself. much. Because we as youngsters, I mean, I'm sure जो भी देख रहा होगा that they're very thankful. Thank you so very much. So, we should say that start a dialogue. By starting a dialogue and by showing your care, only then you can control this problem. Only then we can control this issue of mental health disorders. अगर हम आपस में बात करेंगे, अगर हम आपस में एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और ये कॉन्फिडेंस घर में ही रहते हुए देंगे कि yes, we are with you, you are not alone. Only then we can cope up with this situation. अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें. Stay tuned. अल्लाह हाफिज. Allah.